داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 25۔ 1172 کا دوسرا مہینہ گزر رہا تھا۔ شوبہ کا قلعہ تو سر ہو چکا تھا، لیکن شہر میں ابھی بدنظمی اور افراتفری تھی۔ عیسائی اپنے کنبوں سمیت وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ بھاگ بھی گئے تھے۔ انہیں ڈر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے شوبہ کے مسلمان باشندوں پر ظلم و تشدد کر رکھا تھا، اسی طرح مسلمان ان کا جینا حرام کر دیں گے۔ اس مقامی کارروائی سے وہ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے جب اپنی فوج کو قلعے سے بھاگتے سلطان ایوبی کے تیر اندازوں کے تیروں سے مرتے اور ہتھیار ڈالتے دیکھا تو بال بچوں کو لے کر گھروں سے نکلنے لگے۔ مسلمان سپاہیوں نے انہیں جانے نہیں دیا تھا۔ سالاروں اور کمانڈروں نے اپنے طور پر حکم دے دیا تھا کہ شہر سے کسی شہری کو کہیں جانے نہ دیا جائے۔ چنانچہ سپاہی بھاگنے والے عیسائیوں کو ریگستان کے دور دراز راستوں، گوشوں اور ٹیلوں کے علاقوں سے روک روک کر واپس بھیج رہے تھے۔ یہ لوگ دراصل اپنے اور اپنے حکمرانوں کے گناہوں کی سزا سے بھاگ رہے تھے۔ انہوں نے یہاں کے مسلمانوں کو کیڑے مکوڑے بنا رکھا تھا۔ مسلمانوں کا کیمپ اس کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ سلطان ایوبی کو اس کیمپ کا علم تھا۔ وہ شوبک میں داخل ہوتے ہی کیمپ پہنچا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق وہاں 2000 کے قریب مسلمان قید تھے۔ یہ 2000 لاشیں تھیں۔ ان میں مویشیوں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ ان سے غلاظت تک اٹھوائی جاتی تھی۔ ان میں بہت سے ایسے بھی تھے جو یہاں جوانی میں لائے گئے تھے اور بوڑھے ہو چلے تھے۔ وہ بھول گئے تھے کہ وہ انسان ہیں۔ ان میں پہلی لڑائیوں کے جنگی قیدی بھی تھے، اور ان میں ان بد نصیبوں کی تعداد زیادہ تھی جنہیں صلیبیوں نے قافلوں سے اور شہر سے پکڑ کر کیمپ میں ڈالا تھا۔ یہ امیر کبیر تاجر تھے یا خوبصورت لڑکیوں کے باپ تھے۔ ان سے دولت، مال اور لڑکیاں چھین لی گئی تھیں۔ ان میں شہر کے وہ مسلمان بھی تھے جن کے خلاف یہ الزام تھا کہ وہ سلطنت اسلامیہ کے وفادار اور صلیب کے دشمن ہیں۔ شہر میں جو مسلمان رہتے تھے وہ نماز اور قرآن گھروں میں چھپ چھپ کر پڑھتے تھے، وہ بھی اس طرح کہ آواز باہر نہ جائے۔ وہ معمولی حیثیت کے عیسائیوں کو بھی جھک جھک کر سلام کرتے تھے۔ اپنی جوان بیٹیوں کو تو پردے میں رکھتے تھے ہی، اپنے معصوم بچوں کو بھی وہ باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ عیسائی خوبصورت بچیوں کو اغوا کر لیتے تھے۔ سلطان ایوبی نے جب ان 2000 لاشوں کو دیکھا تو اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا تھا، ان مظلوموں کو آزاد کرانے کے لیے میں پوری کی پوری سلطنت اسلامیہ کو داؤں پر لگا سکتا ہوں۔ اس نے ان کی غذا اور ان کی صحت کے لیے فوری احکامات جاری کر دیے تھے، اور کہا تھا کہ ابھی انہیں اسی جگہ پر رکھا جائے اور انہیں بستر مہیا کیا جائے۔ اس کے پاس ابھی ان کی کہانیاں سننے کے لیے وقت نہیں تھا۔ اسے ابھی باہر کی کیفیت کو قابو میں لانا تھا۔ باہر کا یہ عالم تھا کہ جنگ ابھی جاری تھی، جس نوعیت کی کھلی جنگ سے نہیں تھی۔ صورت یہ تھی کہ صلیبی فوج کو، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دھوکے میں آ کر قرق اور شوبک سے دور اس کی فوج کو روکنے کے لیے چلی گئی تھی، وہ بکھر کر پسپا ہو رہی تھی۔ مسلمان دستے اس پر شب خون مار کر اور زیادہ برا حال کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کو اطلاع مل رہی تھی کہ بعض جھڑپ میں اس کے دستے گھیرے میں آ کر نقصان اٹھا رہے تھے۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ قرق کے قلعے میں جو صلیبی فوج ہے وہ صحرا میں پھنسی اور بکھری ہوئی اپنی فوج کی مدد کے لیے بھیج دی جائے۔ اس صورتحال کے لیے سلطان ایوبی کے لیے فوج کی کمی تھی۔ مصر سے وہ کمک نہیں منگوانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں کی سازشیں دبی نہیں تھیں۔ معزول کی ہوئی فاطمی خلافت کے حامی درپردہ سازشوں میں مصروف تھے۔ سوڈانی حبشی اور الگ طاقت جمع کر رہے تھے۔ ان دونوں کو صلیبی مدد دے کر سلطان ایوبی کے خلاف متحد کر رہے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ متحدہ مسلمان سیاسی اور فوجی سربراہ ابھی سلطان ایوبی کے خلاف درپردہ کارروائیوں میں مصروف تھے۔ ایمان فروشوں کا ٹولہ تھا جو اقتدار کے حصول کے لیے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر رہا تھا۔ انہوں نے حشیشین کے پیشے ور قاتلوں کی خدمت بھی حاصل کر لی تھی، جنہوں نے سلطان ایوبی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کئی بار کہا تھا کہ صلیبیوں کی کتنی بڑی کامیابی ہے کہ وہ میرے ہاتھوں مسلمانوں کو قتل کرا رہے ہیں۔ بے شک ایمان فروش ہیں جنہیں میں نے غداری کے بدلے میں سزائے موت دی ہے، لیکن وہ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے۔ کاش یہ لوگ اپنے دشمن کو پہچان لیتے۔ اب جب کہ شوبک کا قلعہ اس کے قدموں میں تھا اور وہ قلعے کی دیواروں پر اپنے فوجی مشیروں وغیرہ کے ساتھ گھوم رہا تھا، اسے شہر کے مسلمان باشندے گروہ در گروہ ناچتے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے نظر آ رہے تھے۔ اونٹوں پر شہیدوں کی لاشیں اور زخمی لائے جا رہے تھے۔ سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ اس کا دستے راس بہاؤالدین شداد اپنی یادداشت میں لکھتا ہے، صلاح الدین کے چہرے پر فتح و نصرت کا کوئی تاثر نہیں تھا۔
खुशियां मनाने वाले शुबक के मुसलमानों का एक गिरोह दफ और शहनाइयों की ताल पर नाचता उस दीवार के दामन में आ रुका जहां हम खड़े थे। सलाहुद्दीन अयूबी उन्हें देखता रहा। लोग उन्हें देखकर पागलों की तरह नाचने लगे। अयूबी के होठों पर मुस्कुराहट तक ना आई। उसने उन लोगों के लिए हाथ तक न हिलाया, बस देख रहा था। गिरोह में से किसी बुलंद आवाज से कहा, सलाहुद्दीन बिन नजमुद्दीन अयूब, तुम शुबक के मुसलमानों के लिए पैगंबर बन के उतरे हो। वो लोग अरबी नस्ल के थे, एक दूसरे को बाप के नाम से पहचानते और पुकारते थे, इसलिए उनमें बेशतर सलाहुद्दीन अयूबी को बिन नज्म कहते थे। नाचने वालों में से किसी ने नारा लगाया, कुर्द के बच्चे, हम तेरी पैगंबरी को सजदा करते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी यकलख्त बेदार हो गया, तड़प कर बोला, उन्हें कहो ये मुझे गुनहगार न करें, मैं पैगंबरों का गुलाम हूँ। सजदे के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। मैंने सुल्तान के एक मुहाफिज से कहा, भाग कर जाओ और इन लोगों से कहो कि ऐसे नारे न लगाएं, अमीर मिस्र नाराज़ होते हैं। मुहाफिज जाने लगा तो अयूबी ने उसे रोक कर कहा, आराम से कहना, उनका दिल न दुखाना, उन्हें नाचने दो, उन्हें गाने दो, उन्होंने जहन्नम से निजात हासिल की है। मेरी ज़िंदगी उन लोगों की खुशियों के लिए वक्फ है। कुछ नहीं कह सका क्योंकि उसकी आवाज़ भर्राई गई थी। ये जज्बात का गलबा था। उसने मुँह फेर लिया। वो हम सब से अपने आंसू छुपा रहा था। कुछ देर बाद उसने हम सब की तरफ देखा और कहा, हम अभी फ़िलिस्तीन की दहलीज पर पहुँचे हैं। हमारी मंजिल बहुत दूर है। हमें शुमाल में वहाँ तक जाना है जहाँ से बहरे रूम का साहिल घूमकर मगरिब को जाता है। हमें सरजमीन अरब से आखिरी सलीबी को धकेल कर बहरे रूम में डुबोना है। वहीं सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने मुतल्लिका मुशीर को हुक्म दिया कि सारे शहर में मुनादी करा दो कि कोई गैर मुस्लिम इस खौफ से शहर से ना भागे कि मुसलमान उन्हें परेशान करेंगे। किसी को किसी मुसलमान फौजी या शहरी से कोई तकलीफ पहुँचे तो किले के दरवाजे पर शिकायत करे, उसका इलाज किया जाएगा। उसने ज़ोर देकर कहा कि हम किसी के लिए तकलीफ़ और मुसीबत का नहीं, प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। अगर किसी ने इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात या हरकत की तो इस्लामी कानून के तहत सज़ा दी जाएगी, जो बहुत सख्त होगी। और याद रखो कि इस्लामी कानून से न कोई गैर मुस्लिम बच सकता है, न मुसलमान। इसका साथ ही उसने हुक्म दिया कि शहर में अगर कोई सलीबी, फ़ौजी या जासूस छुपा हुआ है या किसी ने उसे अपने घर में पनाह दे रखी है तो फ़ौरन अपने आप को मुसलमान फ़ौज के हवाले कर दे। सुल्तान अयूबी की फ़ौज किले की एक दीवार तोड़कर अंदर गई थी। उसने हुक्म दे रखा था कि किले के उस हिस्से पर फ़ौरन कब्ज़ा किया जाए जहाँ सलीबियों के महकमे जासूसी का मरकज़ था। उसके जासूसों ने उसे उस मरकज़ के मुतालिक बहुत सी मालूमात दी थी और रहनुमाई भी की थी, मगर सलीबी इतने अनाड़ी नहीं थे कि उन्होंने सबसे पहले उसी हिस्से को खाली किया और दस्तावेज़ निकाल ले गए थे। उनकी जासूसी का सरबराह हरमन और उसके दीगर माहिरीन वहाँ से गायब हो चुके थे। अलबत्ता 8 लड़कियाँ पकड़ी गई थी जो अली बिन सुफियान के हवाले कर दी गई थी। वो उनसे मालूमात ले रहा था। उन लड़कियों ने बताया था कि कमोबेश 20 लड़कियाँ वहाँ से निकल गई हैं। वो सब अपने तौर पर भागी थी। उनके साथ कोई मर्द नहीं था। मर्द जासूस भी निकल गए थे। उन 8 लड़कियों में से एक ने अपनी साथी लड़की लोजीना के मुतालिक बताया था कि उसने एक मुसलमान फौजी हुदैद को किले से फरार कराकर खुदकुशी कर ली थी। शुबक में अमन और शहरी इंतजामिया बहाल करने की सरगर्मियां थीं और करक में शुबक पर हमले और उसे सुल्तान अयूबी से छुड़ाने की स्कीमें बन रही थीं। लेकिन सलीबी हमले के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकते थे जितना वो समझते थे। उनके सामने पहला सवाल तो ये था कि उनके आलिम जासूस ने बड़ी पक्की इत्तला दी थी कि सुल्तान अयूबी करक पर हमला करेगा। उसकी फौजें करक की तरफ ही आ रही थीं। उनके काहिरा के जासूसों ने भी नाकाबिल तरदीद इत्तलाएं दी थीं कि सुल्तान अयूबी की फौज करक पर हमला करेंगे, जिसका कमान वो खुद करेगा। मगर आधे रास्ते से उसकी फौजों ने रुख बदल दिया और ऐसी चालें चली कि सलीबी फौज जो मुसलमानों के रोकने के लिए गई थी, शब खूनों की जद में आ गई। और सुल्तान अयूबी ने करक से इतनी ज़्यादा दूर शुबक पर हमला कर दिया। ये सवाल एक कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया था जिसमें सलीबी फ़ौज के आला अफसर और सलीबी हुक्मरान मौजूद थे। उनके महकमे जासूसी का सरबराह हरमन और आलिम जासूस, जिसे सलाहुद्दीन सुल्तान अयूबी ने काहिरा से गिरफ्तार करके रिहा कर दिया था, मुलजिमों की हैसियत से कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। आलिम जासूस शुबा के किले से भागने में कामयाब हो गया था। उसे कॉन्फ्रेंस में से हथकड़ियों में पेश किया गया था। इस पर इल्ज़ाम यह था कि उसने गलत इत्तला देकर मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाया और उनकी फतेह का बायस बना है। उसने एक बार फिर बयान दिया कि उसे इत्तला किस तरह मिली थी कि सुल्तान अयूबी करक पर हमला करेगा।
उसने ये भी कहा कि अगर इसकी इत्तला में कोई शक था तो मुतल्लिका महकमे को उसके मुताबिक अमल नहीं करना चाहिए था। उसके इस बयान पर हरमन ने पूछा गया कि उसने जासूसी के माहिर के हैसियत से क्यों तस्लीम कर लिया था कि जासूस की लाई हुई इत्तला बिल्कुल सही है। मुझे इस बारे में बहुत कुछ कहना है। हरमन ने कहा, मैं दावा कर सकता हूँ कि मैं जासूसी और सुराग रसानी का माहिर हूँ, मगर कई मौके पर ऐसे आए हैं जिनमें मेरी महारत और मेरी जासूसी की मेहनत और कुर्बानी को नज़रअंदाज किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरी महारत फ़ौज की मरकज़ी कमान के हुक्म या किसी बादशाह के हुवन की नज़र हो गई। इस कॉन्फ्रेंस में 3 हुक्मरान मौजूद हैं और उनकी मुत्तहिदा कमान के आला कमांडर भी मौजूद हैं, और जबकि इतनी बड़ी शिकस्त से दो चार हुए हैं जिसमें शुबक जैसा किला हाथ से निकल गया है, इसके साथ ही मीलों वसी इलाके पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है, साल भर की रसद और दीगर साजो सामान दुश्मन के हाथ लगा है और शुबक की पूरी आबादी मुसलमानों की गुलाम हो गई है। मैं आपकी खामियां और अहकमाना बहरकतें आपके अमा फर्ज समझता हूँ, और मैं आप सबको बसद एहतराम याद दिलाता हूँ कि हमारे सलीब पर हलफ उठाया है कि सलीब के वक़ार के लिए अपने आप कुर्बान कर देंगे। अगर आप में से किसी को जाती वक़ार ठेस पहुंची है तो सलीब के वक़ार पेश नज़र रखना चाहिए। हरमन की हैसियत ऐसी थी कि कोनाट ग्याफलोजिनान और शाह अगस्टर जैसे खुदसर बादशाह भी उसकी बात रद्द करने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। जासूसी का तमाम तर निज़ाम उसके हाथ में था, उनमें सलाहकार जासूस भी थे। हरमन किसी भी हुक्मरान को खुफिया तरीके से कत्ल कराने की हिम्मत और अहलियत रखता था। उसे इजाज़त दे दी गई थी कि वो अपना तज्जिया पेश करे। मैं समझने से कासिर हूँ कि दुश्मन के राज मालूम करने के लिए उसकी किरदार कुशी के लिए सिर्फ लड़कियों पर क्यों भरोसा किया जा रहा है। उसने पूछा, इसलिए कि औरत इंसान की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। किसी हुक्मरान ने कहा, किरदार कुशी का बेहतरीन जरिया औरत है, ख्वाह वो तहरीरों में हो या गोश्त पोश की सूरत में हो। क्या तुम इससे इनकार कर सकते हो कि अरब में बहुत से मुसलमान उमरा, किलेदारों और उज़रा के हमने औरत के हाथों अपना गुलाम बना लिया है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि इस वक्त मुसलमानों की हुकूमत फ़ौज के हाथ में है। अरमन ने कहा, उनका खलीफा अपना हुक्म नहीं मनवा सकता, फ़ौजी उमूर में उसका कोई अमल दखल नहीं। सलाउद्दीन अयूबी की मिस्र में हैसियत एक गवर्नर की है, लेकिन उसने वहाँ के खलीफा को माजूल कर दिया है। इधर नूरुद्दीन जंगी, और जिसकी हैसियत एक सालार और वजीर की है, लेकिन जंगी उमूर में उसे बगदाद के खलीफा से हुक्म और इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लिहाजा ये पेश नज़र रखिए कि आपने चंद एक ममीरों, वजीरों और किलादारों को हाथ में ले लिया है तो उनकी हैसियत गद्दारों की सी है। वो आपको अपने मुल्क का 1 इंच इलाका भी नहीं दे सकते। इस्लामी सल्तनत के असल हुक्मरान फ़ौजी हैं। नूरुद्दीन जंगी और सलाउद्दीन अयूबी ने अपनी फ़ौजों की तरबियत ऐसी की है कि आप लड़कियों से उस फ़ौज का किरदार ख़राब नहीं कर सकते, ना ही कर सके हैं। इस फ़ौज के लिए शराब पीना संगीन जुर्म है और इस्लाम में हर किसी को शराब हराम है। इस पाबंदी का असर यह है कि मुसलमान फौजी हो या शहरी अपने होश ठिकाने रखता है। अगर सलाउद्दीन अयूबी शराब का आदी होता तो आज मिस्र हमारा होता और सलाउद्दीन अयूबी शुबा के किले का फातेह ना होता, बल्कि इस किले में हमारा कैदी होता। हरमन, एक कमांडर ने उसे टोक कर कहा, अपनी बात लड़कियों तक रखो, हमारे पास मुसलमानों के हिसाब सुनने के लिए वक्त नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि हरमन ने कहा कि जासूसी के लिए लड़कियों का इस्तेमाल नाकाम हो चुका है। गुज़िश्ता 2 बरसों में हम बड़ी कीमती लड़कियां मिस्र में भेजकर मुसलमान फौजियों के हाथों मरवा चुके हैं। लड़की के मामले में यह भी याद रखिए कि औरत ज़ात जज्बाती होती है। आप लड़कियों को कितनी सख्त ट्रेनिंग क्यों ना दे दें, वो मर्दों की तरह पत्थर नहीं बन सकती। हम उन्हें खतरों में फेंक देते हैं। खतरा बहरहाल खतरा होता है और दिलो दिमाग पर असर करता है। बाज़ औक़ात हालात बहुत ही बिगड़ जाते हैं। उन हालात में मुसलमान फौजी हमारी लड़कियों को तफरीह का जरिया बनाने की बजाय उन्हें पनाह में ले लेते हैं। लड़कियां जजिया से मगलूब हो कर रह जाती हैं। हाल ही में हमारी एक लड़की को सलाउद्दीन अयूबी के एक कमांडर ने डाकुओं से बचाया। वो जख्मी हो गई। लड़की उसे शुबक में ले गई। हमने उसे मुसलमान कैंप में फेंक दिया। लड़की ने उसे हमारी फौज के एक अफसर की वर्दी पहनाकर किले से निकाल दिया। उसे घोड़ा भी दिया। मैंने लड़की को पकड़ लिया। लड़की ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। उसने सजा के खौफ से खुदकुशी नहीं की। उसने महसूस कर लिया था कि वो गुनहगार है और अपने जिस्म को धोखे के लिए इस्तेमाल कर रही है। यह एहसास इतना शदीद था कि उसने जहर पी लिया।
लड़कियों के खिलाफ मैं एक दलील और भी देना चाहता हूँ। हमारे पास जो जासूस लड़कियां हैं उनमें ज़्यादा तादाद उनकी है जिन्हें हमने बचपन में मुसलमानों के काफिलों से या उनके घरों से अगवा कराया था। उन्हें हमने अपना मजहब दिया और अपनी असलियत भूल गईं। उन्हें याद भी ना रहा कि मुसलमानों की बेटियां हैं, मगर हमने उनके सिर्फ नाम बदले, उनका मजहब और उनका किरदार बदला, उनके खून को ना बदल सके। मैं इंसानी नफ्सियात को समझता हूँ, लेकिन ये मेरा तजुर्बा है कि मुसलमान की नफ्सियात दूसरे मज़ाहिब के इंसानों से मुख्तलिफ है। ये लड़कियाँ जब किसी मुसलमान के सामने जाती हैं तो जैसे उन्हें अचानक याद आ जाता है कि उनकी रगों में भी मुसलमान बाप का खून है। मुसलमान के खून से उसका मजहब निकलता नहीं। तुम ये कहना चाहते हो कि किसी लड़की को जासूसी के लिए ना भेजा जाए? एक कमांडर ने उससे पूछा। किसी ऐसे लड़की को ना भेजा जाए जो किसी मुसलमान के घर पैदा हुई थी। हरमन ने जवाब दिया, अगर आप लड़कियों को मेरे हुक्म महकमे से निकाल दें तो सलीब के लिए बेहतर रहेगा। हम मुसलमान उमरा के हरमों में लड़कियां भेजते रहे हैं, आप उन्हें फांस सकते हैं, वो आसानी से आपके हाथ आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मैदान जंग नहीं देखा, उनकी तलवार हमारी तलवार से नहीं टकराई है। हमें उनकी सिर्फ फौज पहचानती है, दुश्मन को सिर्फ फौज जानती है, इसलिए वो हमारे झांसे में नहीं आ सकती। सलीबियों का बादशाह सागस्टस इंतहा दर्जे का शैतान फितरत हुक्मरान था, जो इस्लाम की दुश्मनी को इबादत समझता था। उसने कहा, हरमन तुम्हारी निगाह महदूद है, तुम सिर्फ सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन को देख रहे हो, हम इस्लाम को देख रहे हैं। हमें इस मजहब की बेकनी करनी है, इसलिए कि किरदार कुशी और नज़रियात में शकूक पैदा करना लाजमी है। मुसलमानों में ऐसे तहजीब राइज करो जिसमें कोशिश हो कि ज़रूरी नहीं हम अपना मकसद अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लें, हम ये मकाम अपनी अगली नस्ल के सुपुर्द कर देंगे। कुछ कामयाबी वो हासिल करेगी और ये मुहिम अगली नस्ल हाथ में ले लेगी। फिर एक दौर ऐसा आ ही जाएगा जब इस्लाम का नामो निशान नहीं रहेगा। अगर इस्लाम जिंदा रहा भी तो ये मजहब किसी और सलाहुद्दीन अयूबी और नूरुद्दीन जंगी को जन्म नहीं दे सकेगा। मैं उसूख से कहता हूँ कि मजहब मुसलमानों का अपना होगा, लेकिन ये मजहब हमारी तहजीब में रंगा हुआ होगा। आज से 100 साल बाद नज़र रखो, फतेह और शिकस्त आरजी वाक़यात हैं। हम शुबक फिर दोबारा कब्जा कर लेंगे। तुम मिस्र में साजिशों को मजबूत करो, फातमियों और सूडानी हबशियों को मदद दो, हशीशीन को इस्तेमाल करो। कॉन्फ्रेंस के कमरे में एक सलीबी अफसर दाखिल हुआ, घर से अटा हुआ और थका हुआ था। उस फौज के कमांडरों में से था जो बाहर रेगिस्तान में चली गई थी और आहिस्ता आहिस्ता करक की तरफ बसपा हो रही थी। वो बहुत परेशान था। उसने कहा कि फौज की हालत अच्छी नहीं है। मैं तजवीज़ लेकर आया हूँ कि करक की तमाम तर फौज के साथ साथ काफ़ी कमक मिलाकर शुबक पर हमला कर दिया जाए और मुसलमानों को मजबूर किया जाए कि वो आमने सामने की जंग लड़े। इस वक्त जंग की कैफियत यह है कि हमारे दस्ते मरकजी कमान के हुक्म के मुताबिक कर की तरफ पीछे हट रहे हैं। मुसलमानों को शब खून मारने वाले दस्ते थोड़ी सी नफरी से रात को कभी हिस्से पर शब खून मारते और गायब हो जाते हैं। वो निशान घोड़े या ऊँटों को बनाते हैं। जिस जानवर को तीर लगता है वो भगदड़ मचा देता है। उसे देखकर दूसरे घोड़े और ऊँट भी डरते और बेकाबू हो जाते हैं। हमने रुक कर इधर उधर को दस्ते को इकट्ठा किए और जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान आमने सामने नहीं आते। हमारे कुछ दोस्तों को उन्होंने सिर्फ इसलिए मारा है कि मुसलमान उन्हें अपनी मर्जी के मैदान में ले जाकर लड़ाते हैं। जज्बे को बेदार करने के लिए ज़रूरी है कि एक शदीद जवाबी हमला किया जाए। इस मसले पर बहस शुरू हो गई। सलीबियों के लिए मुश्किल ये पैदा हो गई थी कि उनकी फ़ौज का बड़ा हिस्सा, जिसे बेहतरीन लड़ाका समझा जाता था, करक से दूर रेगजार में बिखर गया था। सुल्तान अयूबी की चाल कामयाब थी। उसके कमांडर और दस्तों के अहदेदार उसकी चाल को खुश उसलूबी से अमली रंग दे रहे थे। वो पानी पर कब्जा कर लेते थे, बुलंदियों पर पहुंच जाते थे, टीलों के इलाकों में घात लगाते थे और दिन के वक्त अगर हवा तेज हो तो हवा के रुख से हमला करते थे। इससे फायदा होता था कि हवा और घोड़ों की उड़ाई हुई रेत सलीबियों की आंख में पड़ती और उन्हें अंधा करती थी। सलाउद्दीन अयूबी की नफरी काफ़ी नहीं थी। मौर्य लिखते हैं कि सलीबी हमला कर देते तो सुल्तान अयूबी के पास इतनी नफरी नहीं थी कि शोबक को बचा सकता था। उसने जंगी फहम फरासत के काम लिया और सलीबियों पर अपना रोब कायम कर लिया था। शुबक के शुमाल मशरिक में सलीबियों की खासी फौज बेकार बैठी थी। उसे इस डर से वापस नहीं बुलाया जा रहा था कि नूरुद्दीन जंगी सुल्तान अयूबी को कमक भेज देगा। सलीबी हुक्मरान और कमांडर करक के किले में बैठे हुए पेचोताप खा रहे थे।
शुबक में अयूबी को यह मसला परेशान कर रहा था कि सलीबियों ने हमला कर दिया तो किस तरह रोकेगा। उसने ईसाइयों के भेस में अपने जासूस करक भिजवा दिए ताकि सलीबियों के अजाइम और मंसूबों से आगाह करते रहें। उसने ऐसा इंतज़ाम कर रखा था कि उसे मुहाज की खबरें तेज़ी से मिल रही थीं। उसने शुबक से और गिरदो नवा के इलाकों से फ़ौज के लिए भर्ती शुरू कर दी और हुक्म दिया कि किले में फौरी तौर पर उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए। सलीबियों के बहुत से घोड़े और ऊंट किले में रह गए थे। बाहर के दस्तों का को तो उसने हुक्म भेज दिया था कि दुश्मन को जानवरों के मारने के बजाय पकड़ें और किले भेजते रहें। उन्हें भर्ती की ट्रेनिंग के सिलसिले में उसने ये हुक्म जारी किया कि उन्हें शबखोर मारने की और मुतहर्रिक लड़ने की ट्रेनिंग दी जाए। करक में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें हरमन ने उस तजवीज़ को रद्द कर दिया गया था कि जासूसी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल न किया जाए। अलबत्ता आलिम जासूस को छोड़ दिया गया और उसे ये हुक्म दिया गया कि मुसलमानों पर नज़रियाती हमला करने के लिए आदमी तैयार करे। उसके बाद ये पूछा गया कि शुबक में कितने जासूस लड़कियां और मर्द रह गए हैं और क्या लड़कियों को वहां से निकाला जा सकता है। हरमन ने उन्हें बताया कि चंद एक लड़कियां मुसलमानों की कैद में हैं और कुछ लापता हैं। मर्द जासूसों के मुतालिक उसने बताया कि चंद एक कैद हो गए हैं और बहुत से वहीं हैं। उन्हें इत्तला भेज दी गई कि वहीं रहें और मुसलमान बनकर अपना काम करें। एक सलीबी हुक्मरान ने कहा कि जो लड़कियां वहां कैद में हैं उन्हें निकालना शायद आसान ना हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ लड़कियां वहां ईसाइयों के घरों में रोपोश हो गई हों। उन्हें वहां से निकालना लाजमी है। थोड़ी देर के बहस मुबाहसे के बाद तय हुआ कि ऐसा गिरोह तैयार किया जाए जो सुल्तान अयूबी के शबखोर मारने वाले आदमियों की तरह जान पर खेलना जानते हों। उस गिरोह का हर एक आदमी ज़हीन और फुर्तीला हो, अरबी या मिस्री ज़बान बोल सकता हो। उस गिरोह को ऐसे मुसलमानों के भेस में शुबक भेजा जाए जिससे पता चले कि करक ईसाइयों के जुल्म व तशद्दुद से भाग कर आए हैं। उन्हें यह काम दिया जाए कि शुबक में रहकर लड़कियों का सुराग लगाएं और उन्हें वहां से निकालें। उस काम के लिए जराइम पेश आदमी मौजू रहेंगे जिन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जेलों से निकाल कर फौज में लिया गया। फौज में पेशेवर मुजरिमों को तलाश करो और उन्हें चंद दिन ट्रेनिंग देकर शुबक भेज दो, लेकिन ये ख्याल रखो कि उन्हें वही सिपाही हों जो शुबक में रह चुके हों और वहाँ गली कूचों और लोगों को उससे वाकिफ़ हों। यहाँ ये मसला पैदा हुआ कि ये जराइम पेशा आदमी उस खत्े की ज़बान नहीं जानते। इसका ये पहला वे पेश किया गया कि ज़्यादातर ऐसे आदमी भेजे जाएँ जो वहाँ की ज़बान जानते हो। मुतअद्दिद मौरख़ीन ने शुबक की फ़तह को एक रंग दिए हैं। उनमें साहब गो किस्म के मौरख़ीन में से जो दिलियम ऑफ डायर की तरह ईसाई हैं सलीबों पर कड़ी नुक्ता चीनी की है। वो लिखते हैं कि उनके हुक्मरान खूबसूरत लड़कियों के ज़रिए मुसलमान इलाकों में जासूसी, तखरीब कारी और किरदार कुशी पर ज़्यादा तवज्जो देते थे। इससे उनके अपने किरदार का पता चलता है कि क्या था। ये दुरुस्त है कि उन्होंने मुसलमानों को चंद एक गैर फौजी सरबराहों को अपने ज़ेरे असर ले लिया था, लेकिन उनके दिमाग में ये ना आई कि मुसलमानों की एक कौम भी है और एक फ़ौज भी है। किसी कौम और उसकी फ़ौज की कौमी जज्बे को मारना आसान काम नहीं होता। और उस सूरत में जबकि सलीबियों ने मुसलमानों के निहत्ते काफिले लूटे थे, उनकी बच्चियां अगवा की थीं, मफतूहा इलाकों में वसी पैमाने पर आबरू रेज़ी की, कत्ले आम किया और मुसलमानों को बेगार कैंपों में ठूस कर जानवर बना दिया। मुसलमान कौम और फ़ौज के जज्बे को मजरूह करना मुमकिन ही नहीं था। उन्होंने मुसलमानों के दिलों में इंतकाम का जज्बा पैदा कर दिया था। इस्लाम की सफ़ों में चंद एक गद्दार पैदा कर लेने से इस मजहब की अजमत को मजरूह नहीं किया जा सकता था। मौरख़ीन ने लिखा है कि इस वक्त शुबक पर हमले की ज़रूरत थी और जब सलाहुद्दीन अय्यूबी जंगी लिहाज से कमज़ोर था, सलीबियों ने शुबक से चंद एक लड़कियों को निकाल लाने पर तवज्जो मरकूज़ कर ली और इस मुहिम के लिए जाबाजों का गिरोह तैयार होने लगा। वो लिखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंगी फ़हम फरासत की दाद देनी पड़ती है कि उसने सलीबियों पर यह रोब तारी कर रखा था कि उसने उनकी फ़ौज को बिखेर दिया था। सलीबियों ने उस तासुर को कबूल कर लिया था। उन्होंने उस तरफ तवज्जो नहीं दी कि अय्यूबी की अपनी फ़ौज का दस्ता टोला टोला होकर बिखर गई है। और यह भी कहा जाता सकता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सूरत हाल से कुछ परेशान भी था। उसके मुआशरे मुशीर खां शद्दाद ने उसकी जिस परेशानी का जिक्र किया है वो यही हो सकती है कि उसके दस्ते सलीबियों के ताक़ुब में बिखर गए थे, उससे मरकज़ियत ख़त्म हो गई थी। यह भी सही है कि उसके दस्ते जाति और कौमी जज्बे के तहत लड़ते थे।
ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ بعض مسلمان دستے صحرائی بھول بھلیوں میں بھٹک گئے تھے اور خوراک اور پانی سے محروم رہے، لیکن ہر حال اور ہر کیفیت میں لڑتے رہے۔ یہ جذبے کی جنگ تھی جس سے صلیبی سپاہی آری تھے۔ انہوں نے اپنے کمانڈروں کو پاس ہوتے دیکھا تھا تو ان میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ اگر صلیبی ادھر توجہ دیتے تو ایبی کی بکھری ہوئی فوج پر قابو پا سکتے تھے، مگر ذرا ذرا سی باتوں پر اتنی زیادہ توجہ دیتے تھے جتنی اہم جنگی امور پر دی جاتی ہے۔ یہاں ایک اور وجہ ضروری ہے۔ اس دور سے صلیبی وقائع نگاروں کے حوالے سے دو تین غیر مسلم مورخین نے اس قسم کی غلط بیانی کی ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے مسلسل 2 سال شعبہ کو محاصرے میں رکھا اور ناکام لوٹ گیا۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ زنگی کو اس کے مشیروں نے خبردار کیا تھا کہ ایوبی مصر کو اپنے ذاتی تسلط میں رکھ کر فلسطین کا بھی خود مختار حکمران بننا چاہتا ہے۔ وہ فلسطین پر قبضہ کر کے جنگی کو معزول کر دے گا۔ یہ مورخین لکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی نے اس بہانے شوبک کو اپنی فوج روانہ کر دی۔ یہ سلطان ایوبی کے لیے کمک ہے، لیکن اس نے اپنے کمانڈروں کو یہ خفیہ ہدایت دی تھی کہ شوبک کے جنگی امور اپنے قبضے میں لے لے۔ چنانچہ فوج آئی۔ سلطان ایوبی سے کسی نے کہا کہ نور الدین زنگی نے فوج اس کی مدد کے لیے نہیں بھیجی بلکہ اس کی مرکزی کمان پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجی ہے۔ یہ سن کر سلطان ایوبی دل برداشتہ ہو گیا اور وہ شوبک کا محاصرہ اٹھا کر مصر کو کوچ کر گیا۔ عیسائی مورخین نے جنگی اور ایوبی کی اس چوکلس پر کو بہت زیادہ اچھالا ہے، لیکن مورخین کی تعداد زیادہ ہے جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سلطان ایوبی نے 1.5 ماہ کے محاصرے کے بعد شوبک کا قلعہ لے لیا تھا۔ البتہ یہ پتہ بھی ملتا ہے کہ صلیبی تخریب کاروں نے نور الدین زنگی کو سلطان ایوبی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی تھی جو کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ سلطان ایوبی کے والد نجم الدین ایوب لمبی مسافت طے کر کے شوبک پہنچے۔ انہیں شک ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا ایسی حماقت پر اتر ہی نہ آیا ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تخریب کار اس کے کان جنگی کے خلاف بھر دیں۔ بہاء الدین شداد اپنی یادداشتوں میں رقم تراز ہے۔ اپنے والد بزرگوار کو دیکھ کر ایوبی بہت حیران ہوا۔ اس نے مصافحہ کیا اور سمجھا کہ محترم والد اس فتح کی مبارکباد دینے آئے ہیں، مگر انہوں نے بیٹے کو پہلے الفاظ یہ کہے، کیا نور الدین زنگی جاہل ہے کہ جس نے مجھ جیسے غلام اور غریب آدمی کے بیٹے کو مصر کا حکمران بنا ڈالا ہے؟ کیا مجھے یہ سننا پڑے گا کہ تیرا بیٹا ذاتی اقتدار کی خاطر سلطنت اسلامیہ کے محافظ نور الدین زنگی کا دشمن ہو گیا ہے؟ جاؤ اور زنگی سے معافی مانگو۔ بات کھلی تو معلوم ہوا کہ سلطان ایوبی کا ذہن صاف ہے، وہ نور الدین زنگی سے کمک مانگنے والا ہے۔ نجم الدین ایوب مطمئن ہو گیا اور وہ واضح ہو گیا کہ یہ صلیبوں کی تخریب کاری اور عیاری ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے خصوصی قاصد معتمد فقیہ عیسیٰ الحکاری کو اپنے والد محترم کے ساتھ رخصت کیا اور الحکاری کو نور الدین زنگی کے نام ایک تحریری پیغام دیا۔ اس کے ساتھ شوبک کے کچھ تحفے بھی بھیجیں۔ اس نے لکھا، بے شک قیمتی تحفے شوبک کا قلعہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد خدائے عز و جل کی مدد سے کرک کا قلعہ پیش کروں گا۔ میں اس پیغام میں سلطان ایوبی کی واضح کیا تھا کہ صلیبیوں کی تخریب کاری سے خبردار رہیں اور یہ نہ بھولیں کہ کچھ مسلمان امراء بھی اس تخریب کاری اور سازشوں میں صلیبیوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، ان کی سرکوبی کی جائے۔ اس پیغام میں سلطان ایوبی نے شوبک کے اس وقت کی صورتحال اور اپنی فوج کی کیفیت تفصیل سے لکھی ہے۔ کچھ انقلابی تجویز پیش کی۔ اس نے جنگی کو لکھا کہ ان حالات میں جب دشمن ہماری زمین پر قلعہ بند ہے اور ہمیں میدان جنگ میں ہمارے درمیان غدار پیدا کر رہا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہماری غیر فوجی قیادت نہ صرف ناکام ہو گئی ہے بلکہ سلطنت اسلامیہ کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ ہم گھر سے دور بے رحم صحراؤں میں دشمن سے برسر پیکار ہیں۔ ہمارے مجاہد لڑتے اور مرتے ہیں، بھوکے اور پیاسے بھی لڑتے ہیں، انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتے، انہیں لاشیں گھوڑوں کے تلے روندی جاتی ہیں، صحرائی لومڑیاں اور گدھوں کی خوراک بنتی ہیں۔ اسلام کی عظمت اور قوم کے وقار کو جتنا وہ سمجھتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہماری غیر فوجی حکام اور سربراہوں کے خون کا ایک قطرہ نہیں گرتا، وہ میدان جنگ سے بہت دور محفوظ بیٹھے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ عیش و عشرت کے عادی ہو گئے ہیں۔ دشمن انہیں نہایت حسین اور چلبلی لڑکیاں اور یورپ کی شراب سے اپنا مرید بنا لیتا ہے۔ وہ دین و ایمان کی سربلندی کے لیے مرتے اور ایمان کے دشمن کے ہاتھ بیچ کر عیش عائش کرتے ہیں۔
اس کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے لکھا کہ جب کہ میں فلسطین کے دہلیز پر آ گیا ہوں اور میں نے فلسطین لیے بغیر واپس نہ جانے کا اپنا پکا ارادہ کر لیا ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ یعنی نور الدین زنگی غیر فوجی قیادت پر کڑی نظر رکھیں۔ امیر العلماء سے کہیں کہ وہ مسجدوں میں اور ہر جگہ اعلان کر دیں کہ سلطنت اسلامیہ کا صرف ایک خلیفہ ہے اور یہ بغداد کی خلافت ہے۔ ہر مسلمان پر اس واحد خلیفہ کی اطاعت فرض ہے، لیکن خطبے میں اگر کسی مسجد میں خلیفہ کا نام نہیں لیا جائے، عظیم نام صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ حکم بھی جاری کیا جائے کہ آئندہ جب خلیفہ یا کوئی حاکم کسی دورے یا معائنے کے لیے باہر نکلے تو اس کے محافظ دستے کے سوا کوئی جلوس اس کے ساتھ نہ ہوگا اور لوگ راستے میں رک رک کر اور جھک جھک کر اسے سلام نہیں کریں گے۔ سلطان ایوبی نے سب سے زیادہ اہم بات یہ لکھی کہ شیعہ سنی تفرقہ بڑھتا جا رہا ہے، فاطمی خلافت کی معزولی نے اسے تفرقے میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ تفریق ختم ہونی چاہیے۔ بے شک خلافت اور حکومت سنی ہے، لیکن کسی سنی حاکم یا اہلکار کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ شیعوں کو اپنا غلام سمجھے۔ حکومت اور فوج میں شیعوں کو پوری نمائندگی دی جائے۔ اس قسم کی کچھ اور بھی انقلابی تجویز تھیں جو سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی کو بھیجیں۔ مورخین نے اس پر متفق ہیں کہ زنگی نے ان پر فوری طور پر عمل کیا۔ اپنے یہاں بھی سلطان ایوبی نے شیعہ سنی ترک و پیار محبت پر عقل و دانش سے مٹانا شروع کر دیا۔